Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel Codesave. So today I am going to solve the lead code problem number 3453. This is today's lead code POTD. Okay, so let's read the problem statement. Separate square 1. Okay, so you are given a 2D integer array squares. Each square's I, xi, yi, li represent the coordinates of the bottom left point and the side length of a square parallel to the x-axis. Okay, so you have to given three things, that is xi, yi and li. Okay, this xi, yi is the point on the graph and the li is the side length of the square. Okay, and further find the minimum y coordinate value of a horizontal line such that the total area of the squares above the line equals to the total area of the square below the line. Okay, answer within 10 to power minus 5 of the actual answer will be accepted. Okay, note squares may overlapping areas should be counted multiple times. Okay, so let's अंडरस्टैंड यूजिंग दिस एग्जाम्पल टेस्ट केस. ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको स्क्वायर्स नाम का एक 2D इंटीजर एरे दिया गया है. ठीक है, उसमें आपके स्क्वायर्स की जो स्क्वायर है उसका आपको डाटा दिया गया है. डाटा मतलब आपको उसका पॉइंट दिया गया है. ठीक है, बॉटम लेफ्ट पॉइंट, एंड उसकी आपको लेंथ दी गई है. ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको एक कट लगाना है. मतलब आपको ऐसा एक बाई कोऑर्डिनेट देना है. मतलब लाइक this is by, if I select this by coordinate, then this line will be cut. This line divide the squares in such that area above this by coordinate and area below this by coordinate must be equal. Okay, means this a1 and this a2, this a1 and a2 must be equal. Okay, we have to select that y coordinate, and that y coordinate must be minimum, not max. Means you have to minimum y coordinate. Minimum y coordinate means from this, like suppose this is the 0 comma 0. So from here we have to choose that minimum y coordinate such that area above that y coordinate and area below that y coordinate must be equal. Okay, and you have to return the precision, means you have to return the answer in precision. Okay, like you have to check each and every lines in the precise way. Okay, so and the next thing is you have to select the overlapping areas. Means you have to select overlapping area also. Like yeah, if an square is exist there, like here, if there is an square like here, so you can select this area also, and or you can select this area also. Means once you select this, so in next time you can also select this area. Means if there is overlapping also occur. Okay, you can count as multiple times. Okay, so this is what question says. Okay, and so three things you have to do. First, you have to check that area should be equal below and above of the y coordinate, and second, you have to return in the precise way. Means you have to return in precisely, means accuracy is required. Okay, and the third thing, you can count the overlapping areas also multiple times. Okay, so these three things. Okay, so this is so simple approach which comes in the first mind, that is simple approach, find minimum by coordinate. तो ये तो हमारा टारगेट है. एंड ओवरलैपिंग एरियाज आर काउंटेड मल्टीपल टाइम्स. ओके, एंड प्रिसीजन रिक्वायर्स. प्रिसीजन हमारा 10⁵ होना चाहिए, यानी 10⁻⁻5 जो कि गिवन है क्वेश्चन में. एंड सो इट इज रिटन एज 0.0001. ओके, so this is 10⁻⁻5 एंड 1e-5 भी बोल सकते हैं आप इसको. ओके, सो सिंपल अप्रोच हमारी क्या हो सकती है कि हम क्या करें. फर्स्ट सिंपल अप्रोच आनी चाहिए दिमाग में से. ठीक है, तो पहले तो यही कि क्वेश्चन समझ आना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको बहुत अच्छे से. बस आपको एक सिंपल बाई कोऑर्डिनेट चूज़ करना है. ठीक है, तो एक बाई कोऑर्डिनेट से एक हमारी लाइन बनेगी ना, बाई एक्स एक्सिस पैरेलल. ठीक है, तो वो लाइन ऐसे आपको सिलेक्ट करनी है कि एरिया इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों एरिया आपके इक्वल होने चाहिए.
ओके। यू हैव टू सिलेक्ट, और वो सिलेक्ट करनी है बहुत ही प्रिसाइज वे में, मतलब 0.00 एक्यूरेसी लानी चाहिए, ठीक है। और एक्यूरेसी के लिए उसने दे रखा है, इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हमने क्या, मैंने एक सिलेक्ट कर दी लाइन यहाँ पे। इफ़ आई सिलेक्ट द लाइन, एक मिनट, लाइन थोड़ी सीधी बनानी चाहिए, ठीक है, लाइन भी सीधी होनी चाहिए। तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, तो अब मैं चेक करूँगी क्या इसके नीचे जो एरिया मेरा बन रहा है वो और इसके ऊपर जो एरिया मेरा बन रहा है वो दोनों एरिया क्या इक्वल है। नहीं इक्वल है, फिर से मैं चेक करूँगी, फिर मैं आगे बढ़ाऊँगी इस लाइन को, जो मेरी लाइन है इसको फिर से मैं आगे बढ़ाऊँगी, इसको मैं फिर से आगे चेक करूँगी। ये जो मेरी लाइन है ना, इसको मैं फिर से, एक मिनट, शिट यार, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, मैं इसको डाल दे रहा, ठीक है। अब जो मेरी लाइन मिली, मैं इसको फिर से एक बार चेक करूँगी यहाँ से यहाँ तक की। एक मिनट, नहीं इसको नहीं चाहिए भाई, ये नहीं चाहिए मुझे, एक मिनट, हाँ मैं ऐसे बना ले रही हूँ, सिंपल, ओके, सिंपल लाइन बना लेती हूँ, ओके। सो अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने ये वाली लाइन यहाँ पे चूज़ की, एक मिनट, यहाँ पे थे ना, अगर मैंने यहाँ पे चूज़ किया, फिर मैं चेक करूँगी, ओके, यहाँ पर भी नहीं मुझे मिला एरिया, यहाँ पे चेक किया, अब मैंने फिर से चेक किया, एरिया अबव, सॉरी एरिया बिलो एंड एरिया अबव नहीं इक्वल है, फिर से मैंने दूसरी एक लाइन सेलेक्ट की, ठीक है, दूसरा बाई कॉर्नर सेलेक्ट किया, एक लाइन यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे चेक किया नहीं इक्वल है, फिर मैंने दूसरा कट मारा यहाँ पे, अब मैंने चेक किया, हाँ अब भाई इक्वल हो गया एरिया। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर नया अप्रोच ट्राई कर रही हूँ, मीन्स यहाँ पर अप्रोच में ये देख रही हूँ कि जो एरिया मेरा, मैं बार बार जा रही हूँ और हर एक बाई कोऑर्डिनेट को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, हर एक बाई कोऑर्डिनेट को, लाइक बस फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम मेरा कहाँ से लगता है, क्वेश्चन में जो मैक्स हमारा दिया गया है, जो कंस्ट्रेंट है उसमें मैक्स दी गई है हमारी 10⁻⁹, जो हमारी बाई की वैल्यू है, वो 10⁻⁹ तक ही आ सकती है, ठीक है। सो एक मिनट, लेंथ, ये जो जैसे लाइक यहाँ पर मेरी बाई की वैल्यू जो अप मोस्ट मेरा स्क्वायर होगा उसकी वाई की वैल्यू मेरी 10⁻⁹ है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों की 10⁻⁹ है। तो इसकी जो इसकी लेंथ होगी, जो इसका जो स्क्वायर का जो ये होगा ना लेंथ, वो कहाँ तक जाएगी, 2⁻⁹ 2⁻⁹ क्यों 2⁻⁹? क्योंकि इसमें उसने क्वेश्चन में गिवन है क्या, लेंथ जो हमारी होगी वो 10⁹, ठीक है, 10⁹ होगी, तो ये पॉइंट होगा ना, सॉरी लेंथ तो हमारी 10⁹ ही होगी, ठीक है, लेकिन जो पॉइंट होगा ना वो ये वाला पॉइंट जो अप मोस्ट पॉइंट होगा वो 2 इंटू 10⁹ होगा। क्यों? क्योंकि 10⁹ प्लस 10⁹ लेंथ को ऐड करेंगे तो ये 2⁹ हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अप मोस्ट पॉइंट है, अप मोस्ट पॉइंट हमारा कहाँ तक की है, 2⁻10⁹ तक की है, ओके। तो मुझे 0 से लेकर 2⁻10⁹ तक की जाना पड़ेगा, यानी बहुत लंबा भाई, ये तो मुझे टीएलई दे ही देगा। क्यों? एक तो मैं लीनियरली मैं चेक कर रही हूँ ना, मैंने कोई वो तो लगाया नहीं, मैंने कोई फ़िल्टर तो लगाया नहीं है भाई कि मैं इधर से इधर जा रही हूँ, ये कर लें, मैं डायरेक्ट बस यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, अब बस मैं 0 बॉटम से लेकर मैं अब तक की जा रही हूँ और चेक करते जा रहे हैं, जहाँ भी मुझे इक्वल मिल जाएगा एरिया वहाँ भी वहीं से मैं रिटर्न कर जाऊँगी। और एक चीज़ और यहाँ पर ये है कि आप एक जैसे मैंने यहाँ पे एक कट मारा, अब मुझे यहाँ पर कट मारा मैंने, तो मुझे एरिया भी तो चेक करना पड़ेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की मैंने एरिया देखा, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की एरिया देखा, और एरिया भी अगर बाइलक क्या हुआ, जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है वो इधर साइड ऐसे मैंने लगाया कि जो एरिया नीचे था उसके अंदर सारे स्क्वायर आ गए, ठीक है, जितने स्क्वायर आने थे, और जो एरिया ऊपर था उसके अंदर स्क्वायर आ गया, ठीक है, कोई भी बिटवीन नहीं आया, मतलब एरिया जो है ना, जो स्क्वायर है ना, कोई भी जो मैंने कट मारा है ना, जो बाई कट है ना, उसके बीच में नहीं आया कोई भी एरिया। तो ये भी मेरे लिए आसान हो गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि मेरा एरिया जो है वो बीच में पड़ गया, जो स्क्वायर है ना, दैट स्क्वायर इज lies between the y cut, okay, so it create problem. We have to find half area of, like here, look here, like if हाँ, अगर मेरा आधा एरिया ये उस ऊपर आ गया, ठीक है, आधा मेरा एरिया नीचे आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, ये लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी, तो फाइंड द एरिया, ये एरिया ऊपर काउंट होगा एंड ये एरिया मेरा कहाँ काउंट होगा, नीचे काउंट होगा, तो ये मेरे थोड़ा अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हो गया इसमें। तो इसमें क्या है, काफ़ी मेरे
ड्रॉबैक हैं इस वाले अप्रोच को लगाने के। ये सिंपल अप्रोच है बट इसमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? आपको सारे वाई पॉइंट निकालने पड़ेंगे जब तक आपको एरिया इक्वल नहीं पड़े। फिर आपको हर पॉइंट पे जाके जैसे जैसे आपने कट मारा हर पॉइंट पे जाकर आपको एरिया भी निकालना पड़ेगा, सारे ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, सबका एरिया भी निकालना पड़ेगा आपको। बिलो द कट एंड अबव द कट आपको एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो ये काफ़ी महंगी अप्रोच है, बोल सकते हैं काफ़ी कॉस्टली अप्रोच है। सो वी डिडंट गो फॉर दिस। ओके, हम इसमें नहीं इसको नहीं करेंगे। क्यों? इफ बिकॉज दिस क्रिएट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी हाई। ओके, ओ ऑफ एन स्क्वायर इट गोज अप टू ओ ऑफ एन स्क्वायर। दिस विल नॉट is the good approach. Okay, so we try for another approach. So another approach क्या होगी? दूसरी अप्रोच जो होगी ना वो इसी अप्रोच से निकलेगी। कैसे? हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं सारे मतलब लाइंस को कट देख के और निकाल रहे हैं एरिया। क्या चेक कर रहे हैं? बस एरिया तो चेक कर रहे हैं, नीचे वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया। और बस क्या देख रहे हैं? जैसे एक ही कट मारा मैंने और नीचे का एरिया मैंने देखा, ऊपर का एरिया मैंने देखा। तो एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम बस नीचे से डायरेक्टली यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं नीचे से ऊपर, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एक ऐसी अप्रोच लगा सकती हूँ। अगर मेरा फॉर एग्जांपल अगर मेरा जैसे एक मेरे पास नंबर है, मैंने एक नंबर दिया आपको 26। ओके, 26। अब आपको गैस करना कि वो मेरा नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको गैस करना दिया मेरा नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आपने गैस किया 11, मैंने किया हाँ आप थोड़ा सा हाँ ठीक है थोड़ा छोटा है नंबर, तो आप क्या करेंगे? इसके आगे जाएंगे। लेकिन फिर आपने गैस कर लिया 50, तो मैं कहूँगी नहीं भाई ये बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? इसके पीछे जाएंगे। क्या करेंगे? पीछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके क्या करेंगे? आप नंबर निकालेंगे। और ये है कौन सी अप्रोच? ये इस अप्रोच को क्या बोलते हैं भाई? बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च ही तो बताता है भाई अगर मेरा जो नंबर है, अगर मेरा नंबर छोटा है तो मैं आगे जाऊँगा, ठीक है। जो मेरा टारगेट है ना, टारगेट वैल्यू जैसे मेरी 26 है, जो मैंने सिलेक्ट किया, जो मैंने गैस किया, जैसे मैंने सोचा मैं 11 में चूज़ करती हूँ, तो मेरा 11 छोटा है तो मैं आगे जाऊँगा, ठीक है, आगे जाऊँगी। लेकिन अगर मैंने फिर से गैस किया भाई मैंने नंबर बड़ा ही चूज़ कर लिया, तो मैं क्या करूँगी? पीछे जाऊँगी। तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ बाइनरी सर्च। ओके, सो हियर वी अप्लाई द बाइनरी सर्च। ओके, वाई भी अप्लाई बाइनरी सर्च, मैंने आपको बता दिया क्यों बाइनरी सर्च लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम लीनियरली जा रहे हैं, तो लीनियरली जाने की बजाय हम बाइनरी सर्च ट्राई करें ना। बाइनरी सर्च में हम क्या करेंगे? जैसे मेरा ये है, ये मेरा मैक्स पॉइंट है और ये मेरा मिन पॉइंट है। ओके, तो मैं क्या करूँगी? जैसे मैंने मिड निकाल लिया, जैसे लाइक दिस इज़ माई मिड। ओके, ये मेरा मिड है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं एरिया निकालूंगी जो कट माना आ रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की एरिया मैं निकालूंगी। और मैं चेक कर लूँगी अगर ये मेरा जो A1 है, जो एरिया A1 एरिया है मेरा, वो अगर मेरा एरिया जो है वो मेरा एरिया जो इस मिड से मतलब इधर ये मेरा लाइन के नीचे है, मतलब ये मेरा छोटा एरिया है इस वाले एरिया से, ठीक है। ये मेरा छोटा एरिया है इस वाले एरिया से, हमें इक्वल एरिया बनाना है ना। अगर ये वाला एरिया जो A1 है वो A2 से छोटा है, A1 है A2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर ये मेरा एरिया छोटा है और ये बड़ा है, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे? नीचे बढ़ाएंगे। ये करना है। तो मैं यहीं पे अब मैं बाइनरी सर्च का प्योर लॉजिक बताऊंगी आपको यहाँ पर कैसे लगाना है, ठीक है। मैंने ओवरव्यू आपको बाइनरी सर्च का दे दिया, बट यहाँ पर मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगी, ठीक। तो क्या करना है? सबसे पहले बाइनरी सर्च हमें ट्राई करना है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का आप लोग सिंपल बाइनरी सर्च तो जानते हैं, जो कि इंटीजर्स नंबर पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? सिंपल लो और हाई यूज़ कर लेते हैं, लो मिड निकालते हैं, और टारगेट से अगर छोटी है तो लो को आगे बढ़ाते हैं, अगर टारगेट से बड़ा है तो हाई को आगे बढ़ाते हैं। बस ये सिंपल हमारा बाइनरी सर्च है। लेकिन दिस इज़ फॉर इंटीजर, और यहाँ पर हम इंटीजर नहीं भाई, यहाँ पर हमें प्रिसीजन भी चेक करना है। तो यहाँ पर हम डबल के लिए जाएंगे, और डबल के लिए बाइनरी सर्च थोड़ा डिफरेंट होगा, स्लाइड डिफरेंट, जो कि इसमें कंडीशन दे रखी है वही सी कंडीशन पे हमें लगाएंगे। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा लो और हाई कैसे निकालें, क्योंकि लो और यहाँ पर तो भाई लो 0 है मेरा, और यहाँ पर मेरा मैक्स 2⁻10⁹ है। तो ये काफ़ी लंबा रेंज है, काफ़ी हाई रेंज है, मतलब रेंज इज़ वेरी लार्ज। सो वी हैव टू शॉर्टन दिस रेंज। ओके, वी हैव टू शॉर्ट दिस रेंज को हमें थोड़ा सा shrink करना, we have to shrink this range. Okay, so how we can shrink this range? So this is the example which I take. So this is like suppose this is 1,1 coordinate of this square, okay, which is given 1,1, and the length is also 1. length आपकी क्या है? स्क्वायर की 1 है, okay.
and this is the second square, and the coordinate is 2, 2, like let's this coordinate is 3, 3. Okay, 3, 3, and the length is also 1, and we have to find the lowest point and the हाईएस्ट पॉइंट. सो फॉर रेंज के लिए हमें निकालना है. तो हम कहाँ से बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं. हम लोवेस्ट पॉइंट वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर मेरा लोवेस्ट स्क्वायर होगा, सबसे लो पे स्क्वायर होगा, जो हमारा सबसे बॉटम में जो स्क्वायर होगा वहीं से तो हम बाइनरी सर्च स्टार्ट कर सकते हैं ना. जैसे ये मेरा सबसे बॉटम है, ये मेरा सबसे बॉटम स्क्वायर है. ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बाइनरी सर्च का जो मिनिमम जो लोएस्ट पॉइंट है वो मैं यहाँ से ले सकती हूँ बाइनरी सर्च के लिए. ठीक है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है जो सबसे टॉप मोस्ट स्क्वायर होगा वहाँ से मैं ले सकती हूँ. टॉप मोस्ट स्क्वायर इज दैट, तो टॉप मोस्ट स्क्वायर मेरा ये है. ठीक है, तो एक टॉप मोस्ट स्क्वायर मेरा ये हाई है. ठीक है, ये मेरा हाई हो जाएगा. ठीक है, टॉप मोस्ट स्क्वायर का यानी टॉप मोस्ट स्क्वायर का जो मेरा पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट. कौन सा? वाई वाला पॉइंट. एक मेरा एक्स होगा, एक मिनट, एक मेरा ये एक्स होगा और एक मेरा ये वाई होगा. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट. ठीक है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट तो मुझे गिव ही नहीं होगा. ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट तो मुझे गिव ही नहीं होगा. ये मैं क्या लगा इसमें, ये बाई वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो वाईथ पॉइंट मुझे देखना पड़ेगा. ठीक है, लोअर और हाई के लिए दोनों के लिए वाईथ पॉइंट देखना पड़ेगा, वाईथ कोऑर्डिनेट. ओके, वाईथ पॉइंट. ठीक है, तो यहाँ पे थे, तो मुझे यहाँ पे जब मैं एकदम टॉप बॉटम में होंगे, बॉटम मोस्ट में होंगे, तो मुझे जो बॉटम मोस्ट पे स्क्वायर होगा ना, तो उसको मुझे ले लेना है. ठीक है, तो उसके बाई कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो यहाँ पर लोग क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि मैं यहीं से बाइनरी सर्च स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि इसके नीचे कोई स्क्वायर तो है नहीं, तो मेरा बाइनरी सर्च यहीं से स्टार्ट होगा. किस पे? जो बॉटम मोस्ट में मेरा स्क्वायर होगा ना, पहला स्क्वायर, उसका मैं क्या ले लूँगी, बाई कोऑर्डिनेट ले लेंगे. ठीक है, तो ये मेरे बॉटम मोस्ट है. ठीक है, अप मोस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपली मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए ना, ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए ना, या फिर ये वाला, दोनों कोऑर्डिनेट मेरा सेम ही होंगे. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं जो ये मेरा हो ना, ये मेरा जो बॉटम वाला है ना, जो मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट है बाई का, उसमें मैं लेंथ ऐड कर दूँगी, तो ये मेरा ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना. सिंपल मैं क्या कर रही हूँ, जैसे ये मेरा एक स्क्वायर है और मुझे क्या निकालना है, मुझे ऊपर वाले को पॉइंट निकालना है. ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. ओके, और मुझे ऊपर वाले, और मुझे नीचे वाला पॉइंट गिवन है 3,3. ठीक है, 3, और मुझे लेंथ भी गिवन है स्क्वायर की. ठीक है, लेंथ भी दे दी इसने, तो मुझे बस सब कुछ तो मिल ही गया. लेंथ दे दी और बॉटम, जो ये बॉटम है उसका पॉइंट दे दिया, मुझे बॉटम पॉइंट दे दिया. तो बॉटम पॉइंट वाला ये क्या, ये बाई वाला बॉटम पॉइंट. ठीक है, बाई वाला बॉटम पॉइंट और प्लस लेंथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला वाई पॉइंट मिल जाएगा, कॉर्नर वाला, ऊपर टॉप कॉर्नर का. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, 3 + 1 4, यानी यहाँ पर हाई मेरा क्या हो जाएगा 4. तो मेरी रेंज मिल गई मुझे 1 to 4. बस मुझे 1 to 4 की रेंज में मुझे बाइनरी सर्च लगा देना है, बस सिंपल. तो मेरी क्या यहाँ पर आ जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, लाइक, तो मैं क्या यूज़ करूँगी यहाँ पर, क्या लिखना पड़ेगा मुझे. हाँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे मेरा जो मेरा मिन वाई होगा ना, तो मिन वाई मेरा पॉइंट होगा, मिन वाई मेरा बॉटम का जो पॉइंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल. मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक लार्ज वैल्यू ले लूँगी और मैं क्या करूँगी, चेक कर लूँगी मिनिमम ऑफ, एक मिनट, एक मिनट. ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, मिन वाई इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लो साइज में. ठीक है, तो पॉइंट क्या जाएंगे, मेरा मिन ऑफ मिन वाई कॉमा जो मेरा स्क्वायर का क्या होगा, 1 पे होगा ना, जो 1 पे होगा, 1 पे ही तो है ना मेरा स्क्वायर का, जो मेरा स्क्वायर होगा ना वो 1 पे. लाइक मेरा स्क्वायर मेरा ये था, जैसे 1,1,1, ये मेरा तो स्क्वायर इनपुट में क्या दिया गया है, उस इनपुट में जो मेरा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0,0, सॉरी एक मिनट, इनपुट में मेरा क्या दिया है 0, एक मिनट, इनपुट में मुझे 0,0 बन गया. और ये जो मेरा है ना फर्स्ट पे जो है, सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे है ना, वही तो मेरा वाई कोऑर्डिनेट है, वही तो मेरा वाई पॉइंट है. तो बस मैं क्या कर दूँगी, बाई में स्क्वायर ऑफ 1 है ना, और मीन बाई से कंपेयर कर लूँगी, तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, ये मेरा मिन बाई की रेंज मिल जाएगी, मतलब ये मेरा लोएस्ट पॉइंट मिल जाएगा रेंज के लिए. ठीक है, और जो मेरा अप मोस्ट पॉइंट का वो मैं कैसे निकालूंगी, सिंपल, उसके लिए भी क्या कर देंगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर मैक्स लूँगी. ठीक है, मैक्स वाई, और यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, मैक्स
ठीक है, मैक्स वाई। और यहाँ पर क्या करें, जो अब मैंने क्या किया था यहाँ पर, एक मिनट, अब मैंने यहाँ पर क्या किया था, जो मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है इसको मैंने निकालने के लिए क्या किया था, टॉप मोस्ट पॉइंट को निकालने के लिए मैंने क्या किया था, जो मेरा जो टॉप मोस्ट स्क्वायर है ना उसका मैं वाईथ कोऑर्डिनेट लूँगी और उसको ऐड कर दूँगी किसके साथ, उसकी लेंथ के साथ, तो मुझे टॉप मोस्ट वाई मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा मुझे, टॉप मोस्ट वाई। तो टॉप मोस्ट वाई मेरा क्या हो जाएगा, SQ ऑफ 1 प्लस एल। ओके, एल इज़ द लेंथ ऑफ स्क्वायर, टॉप मोस्ट स्क्वायर की लेंथ जो होगी वो, ठीक है, और उसका वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। बस सिंपल, मुझे मेरा वाई कोऑर्डिनेट एंड मेरा मतलब मैक्स वाई एंड मिन वाई मेरी तो मिल गई है। बस अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिंपल बाइनरी सर्च अप्लाई करूँगी, ठीक है। तो बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए मुझे ई तो मिल गया, मिन वाई मिल गया, मैक्स वाई, ई तो मुझे रेंज मिल गई, ठीक है। ये मैंने क्या निकाल ली, रेंज निकाल ली। ये मेरा क्या है, दिस इज़ लो, ये मेरा क्या है, लो है, और ये मेरा क्या है, हाई है। मैं लो और हाई के टर्म में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सिमिलर होंगे बाइनरी सर्च को ऐसे ही सॉल्व करने के लिए, लो और हाई के टर्म में, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं आपको सिंपल जो बाइनरी सर्च होता है ना, आपको इंटीजर के लिए तो मैंने लिख के दिखा दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर डबल के लिए चाहिए। क्यों डबल के लिए, मुझे यहाँ पर प्रिसीजन भी चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पर जो बाइनरी सर्च चाहिए है ना वो मुझे डबल के लिए चाहिए, ठीक है, ना कि इंटीजर के लिए चाहिए, ठीक है। तो डबल के लिए मुझे कैसे लिखना है, मैं आपको एक मिनट लिख के दिखा दें। तो दिस इज सिंपल बाइनरी सर्च फॉर इंटीजर, तो बट मुझे आई नीड फॉर डबल। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, बस इसे कॉपी करूँगी। मैं इसी में क्या करेंगे, इसी में आपको थोड़ा सा वो करके दिखाती हूँ, इसी में मैं आपको थोड़ा सा वेरिएशन लूँगा, बस थोड़ा सा वेरिएशन वो मैं दिखाती हूँ कैसे। तो यहाँ पर क्या है, और उससे पहले मैं एक चीज़ और बताती हूँ, ये प्रिसीजन कॉन्सेप्ट भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। एक मिनट, प्रिसीजन कॉन्सेप्ट के लिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, Ctrl+C, ओके, यहाँ पे लाते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं, और जो पॉइंट है ना ये इसको यहीं पे लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए। जो पॉइंट्स चाहिए तो मुझे रेंज है, ये क्या है, दिस इज व्हाट नथिंग बट दिस इज रेंज, ओके। रेंज विच फॉर अप्लाई ऑन दैट अप्लाई वी हैव टू अप्लाई बाइनरी सर्च, ओके। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, रेंज, मैंने निकाल ली है रेंज, ओके, दिस इज रेंज एंड सिंपल बाइनरी सर्च मैंने अप्लाई यहाँ पे मैं बताया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, सबसे पहले प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। प्रिसीजन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, ठीक है। जैसा कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, जो आपको प्रिसीजन चाहिए ना वो आपको 0.00000 एंड 1, ठीक है, यानी 10⁻⁻5 तक की आपको प्रिसीजन चाहिए, यहाँ तक की, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे लाइक मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मैंने बाइनरी सर्च अप्लाई किया ये तो मेरा इंटीजर के लिए था, बट मुझे डबल के लिए अप्लाई करना है। तो डबल के लिए करने के लिए मुझे यहाँ पर अगर मैं लो लेस देन हाई यूज़ करूँगी तो लो और हाई कभी इक्वल ही नहीं होंगे। डबल में लो और हाई कभी तो ज़िंदगी में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा ज़िंदगी में, नहीं, कभी एक पॉइंट आ सकता है कि इक्वल हो सकते हैं, बट ऐसा पॉइंट भी आ जाएगा कभी इक्वल ही नहीं हो, मतलब ना ही इक्वल हो, टर्मिनेट ही ना हो मेरा वाइल लूप। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर हाई माइनस लो का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, हाई माइनस लो का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और ये जो मेरा हाई माइनस लो का कॉन्सेप्ट है ये मेरा क्या हुआ, और जितना मुझे प्रिसीजन चाहिए ना, जितना मुझे प्रिसीजन चाहिए, ठीक है, वहाँ से जितना मुझे प्रिसीजन चाहिए ना उसके अगर जैसे प्रिसीजन चाहिए मुझे 1e-5, यानी अगर ये ग्रेटर होगा, ये जो हाई माइनस लो है अगर वो ये बड़ा हो गया किससे, 1e6 से, 1e6 क्योंकि मुझे 1e5 तक की चाहिए है और 1e5 तक की मुझे मिल गया। अगर 1e6 तक की ये मेरा वैल्यू पहुंच गया तो वहाँ पे मुझे ब्रेक कर जाना है, ठीक है, क्योंकि लो माइनस हाई मैंने यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, लो माइनस हाई निकालेंगे, ठीक है, और मिड निकाल लेंगे। और बस टारगेट मेरा यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा टारगेट फंक्शन, ये टारगेट यहाँ पर फंक्शन पास करेंगे टू फाइंड द जो एरिया होगा ना उसे फाइंड करेंगे। अगर इज़ लोअर, अगर मेरा एरिया है ना, एरिया में मैं क्या पास करूँगी, सिंपल स्क्वायर पास करूँगी एंड मिड पास करेंगे, ठीक। अगर जो मेरा एरिया है, एक मिनट,
ठीक है, ये मेरा बाइनरी सर्च होगा। अब देखिए जो मेरा ए स्क्वायर है ना उसको मिड पास करेंगे, लेकिन अगर मेरा जो एरिया है, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, जैसे ये है, ये मैंने यहाँ पर कट मारा, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर कट मारा, ठीक है, एक मैंने कट मैंने यहाँ मार लिया, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, जैसे मैंने ये कट मारा, तो ये एरिया जो मेरा नीचे वाला एरिया है, ठीक है, और जो ऊपर वाला एरिया है, इन दोनों का डिफरेंस जो आया ना, अगर जैसे इन दोनों का डिफरेंस वो आया मेरा अगर ग्रेटर देन 0 आया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला एरिया मेरा ज़्यादा है, नीचे वाला एरिया मेरा कम है, यही तो इसका मतलब हुआ ना। लाइक A2 मेरा ये है और A1 मेरा ये है, और मैंने चेक किया जो मेरा नीचे वाला एरिया है ना, नीचे वाला एरिया मेरा जो है, नीचे वाला एरिया है जो मेरा छोटा है और ऊपर वाला बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो, मतलब जो मैंने माइनस किया है A2 माइनस A1, मैंने A1 माइनस ब्लो एवब एरिया माइनस ब्लो एरिया, अगर मैंने ये चेक किया A2 माइनस A1 अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है A2 माइनस A1, तो A2 मेरा क्या हुआ, ये हुआ, A1 मेरा क्या हुआ, ये हुआ, सॉरी A2 मेरा ऊपर वाला, A1 मेरा नीचे वाला, यानी A2 माइनस A1 अगर वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो मेरा ऊपर वाला एरिया ज़्यादा है, नीचे वाला एरिया कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली दिस इज सिंपली नथिंग, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा ये है ना, ये जो मेरी है, ये जो लाइन है मेरा, ये लाइन, तो इस लाइन को मुझे सिंपल क्या करना है, ऊपर बढ़ा देना है। क्यों कब बढ़ा देना है, क्योंकि मुझे A1 A2 को इक्वल करना है, और नीचे वाला एरिया मेरा क्या है, नीचे वाला एरिया मेरा कम है, तो नीचे वाले एरिया को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है, ये जो कट मैंने मारा है उसे ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना है, ये जो मेरी कट है ना, इसको ही मूव करना है, ठीक है। अगर एरिया ऊपर वाला एरिया अगर छोटा पड़ गया, नीचे वाला ज़्यादा पड़ गया, तो मुझे इस जो लाइन है ना, ये जो कट है, इसको मुझे नीचे मूव करना है। अगर नीचे वाला एरिया कम पड़ गया, ऊपर वाला ज़्यादा पड़ गया, तो मुझे लाइन को ऊपर मूव करना है, ठीक है, नीचे ऊपर, बस यही इसी लाइन को मुझे मूव करते जाना है। तो बस, तो क्या मैंने लगाया है यहाँ पर, अगर मेरा A2 A1 जो मेरा इज लोअर जो फंक्शन मैंने इसमें पास किया, अगर मेरा ये जो है ना, ये जो मेरा एरिया, अगर मेरा ये मेरा जो एरिया का डिफरेंस है वो अगर मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लो को मिड के इक्वल कर देना है। क्यों, मुझे बस जो लाइन है लाइन को अप करो, ठीक है, नहीं तो लाइन को क्या कर रहा हूँ, लाइन को क्या करना है, लाइन डाउन। क्यों लाइन को डाउन क्यों करना है, क्योंकि जो मेरा अगर मेरा लेस देन आया है, मतलब नीचे वाला एरिया ज़्यादा है ना, तो लाइन को नीचे करो, ऊपर वाला एरिया जाना है तो लाइन को ऊपर करो, सिंपल। अभी मैं इसको एक बार और आपको समझा दूँगी, तो आपको अच्छे समझ आएगा कि लाइन अप और लाइन डाउन कब करना है, ठीक है। और जो प्रिसीजन वाला कॉन्सेप्ट है वही मैंने बता दिया, क्योंकि अगर लो माइनस हाई अगर मेरा 100 है, यानी वो बड़ा है, ई बनेगी 5 से, तो मुझे आगे बढ़ते जाना है। 0.1 आया, फिर 0.001 आया, और 0.001 यानी ये इक्वल हो गया मेरा 1/5 के। तो बस मुझे यहीं तक की प्रिसीजन चाहिए ना, तो बस यहाँ तक कि चलेगा लूप। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो गया, लाइक 0.00001 मतलब 1/6 पहुँच गया, वहाँ पर मुझे रुक जाना है। तो बस मुझे यहीं तक चलना है। लाइक अगर ये जो 1/6 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, मतलब बराबर या ज़्यादा हो गया है, तो मुझे यहीं पर रुक जाना है। मैंने बराबर इसलिए ले लिया, तो मैंने 1/6 का बराबर इसलिए लिया, तो काफ़ी अच्छा प्रोसीजर मिल जाएगा, इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। नहीं तो आप 1/5 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मेन कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे आता है कि ये जो इज लोअर फंक्शन है ना, इसको कैसे बनाना है, एरिया कैसे निकालना है, जो बिलो और एबव का एरिया है ना, वो कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड द एबव एरिया का एरिया ऑफ द लाइन एंड बिलो। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ इसको फाइंड करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल जो मैंने बताया ना वही अप्रोच लगानी है। क्या करना है, जैसे मैंने एक कट मैंने यहाँ मारा, ये कट, एक मिनट, ओह शिट यार, ये क्या हो जाता है, इसको उठा पहले, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने एक कट मैंने यहाँ मारा, ये मैंने कट मारा, ठीक है। तो ये कट तो काफ़ी सिंपल हो गया। इस कट में क्या हुआ, जो मेरा ऊपर वाले स्क्वायर्स थे, यहाँ पर और भी मल्टीपल स्क्वायर्स हुए, मैंने बस 2 स्क्वायर लिख के एग्जांपल लिया, ठीक है, और भी काफ़ी स्क्वायर हो सकते हैं, मैं ले लेती हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो एक स्क्वायर मेरा यहाँ हो गया, ठीक है, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर मैं एक और ले लेती हूँ, ठीक है, ठीक है। एक स्क्वायर मेरा ये स्क्वायर तो लग ही नहीं रहा कहीं से, एक स्क्वायर मेरा ये हो गया, ठीक है। तो मैंने 4 स्क्वायर ले लिए, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा आपको। तो मैंने कट मेरा ये मारा, तो ये मेरा बाई कोऑर्डिनेट हो गया, एक मिनट, हाँ, तो ये मेरा बाई कोऑर्डिनेट हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगी,
सिंपल सारे स्क्वायर्स के लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने फर्स्ट स्क्वायर पे मैं इस वाले स्क्वायर पे हूँ, ठीक है, पहले नंबर पे। जैसे जो मेरा जिसमें एरे में गिवन होगा ना, तो पहले मैं इस वाले स्क्वायर पे हूँ, ठीक है, इस वाले स्क्वायर को खड़ी हूँ। तो इस वाले स्क्वायर को एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं चेक करूँगी जो मेरा बाई जो कोऑर्डिनेट जो बाई मेरा कट है ना, जो मेरा बाई कट है वो जो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस सबसे पहले हाँ टॉप मोस्ट पॉइंट है, पहले टॉप मोस्ट पॉइंट से चेक करती हूँ। जो इसका स्क्वायर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो अगर इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो अगर नीचे है, किसके, बाई के नीचे है, इस जो बाई कट के नीचे, यानी ये आ रहा है ब्लो में, ये ब्लो एरिया में आ रहा है, मतलब नीचे एरिया में आ रहा है, ये नीचे वाले एरिया में आ रहा है। इस एरिया का नाम मैंने दे सकती हूँ A1 दे लो या फिर ब्लू एरिया दे दो, ठीक है, ब्लू मतलब नीचे, ओके, ठीक है। तो ये नीचे आ रहा है। सेम फॉर दिस, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो इस वाई कट के नीचे आ रहा है। तो ये एरिया भी हमारा A1 में आएगा। क्यों A1 में आएगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, वाई कट के ब्लो आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इस वाले एरिया पे इस वाले स्क्वायर पे आती हूँ। इस वाले स्क्वायर में सबसे पहले या तो फिर बॉटम वाला भी चेक मारना पड़ेगा मुझे, टॉप वाला भी चेक मारना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने चेक किया बॉटम जो है ना, ये बॉटम है, वो मेरा वाई कट के ऊपर आ रहा है, वाई कट के क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये किस में आएगा, ये मेरा एवम में आएगा, एवम वाले एरिया में आएगा। तो ये किस में आएगा, ये मैं A2 में काउंट कर लेती हूँ, A2 वाले एरिया में आएगा। A2 मतलब एवम, ठीक है। सेम फॉर ईयर। तो मैं दोनों कंडीशन चेक करूँगी। अगर या तो बॉटम वाला जो है ना वो बाई से बड़ा है, अगर जो बॉटम पॉइंट है ना वो बाई कट के पॉइंट से बड़ा है, तो वो एब वाले में आएगा। अगर वो टॉप वाला जो है ना, अगर वो क्या हुआ, जो टॉप वाला पॉइंट है वो अगर बाई कट से छोटा है तो वो मेरा नीचे वाले में आएगा, ठीक है, नीचे वाले एरिया में आएगा। सेम फॉर दिस, इसका भी जो बॉटम पॉइंट है वो बाई कट से बड़ा है तो वो एब वाले एरिया में आएगा। सेम फॉर दिस, अगर जो इसका जो टॉप वाला है वो तो छोटा है, सॉरी टॉप वाला भी बॉटम वाले चेक करेंगे ना, टॉप वाला नीचे वाले में चेक करेंगे, ठीक है। मतलब दोनों कंडीशन लगाएंगे, जो कंडीशन सेटिस्फाई जाएगी उसमें जाएगा, A1 में आएगा फिर A2 में आएगा। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या है, ये तो मेरी दो हो गई, या तो एवम में आएगा तो या विलो में आएगा। तीसरा मेरा क्या होगा, तीसरा गया तो फिर जो मैंने कट मारा वो बीच में आ गया, स्क्वायर के क्या आ गया, बीच में। तो तीसरी मेरी कंडीशन ये हो गई, क्या होगा, जो मेरा कट मैंने मारा है, वाई कट मारा है, वो बीच में आ गया भाई। तो बीच में आने के लिए मुझे जैसे कोई भी स्क्वायर बीच में पड़ सकता है, जैसे ये स्क्वायर पड़ गया मेरे बीच में, तो इस स्क्वायर को निकालने के लिए इस स्क्वायर की वाई की मुझे ये वाई निकालना पड़ेगा और इस स्क्वायर का इस वाले वाई को भी निकालना पड़ेगा। और चेक कैसे करेंगे, या तो स्क्वायर का ना ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ना ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई इस स्क्वायर के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं तीसरी कंडीशन में जाऊँगी, ना फिर ये ना ही ये। फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, ठीक है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो वी विल कम इनटू द एल्स पार्ट, ओके। तो ये वाला एल्स पार्ट है, ठीक है। तो एल्स में क्या हुआ, वो बिटवीन में आ गई होगी, वाई कट के, वो वाई कट जो मैंने किया है ना स्क्वायर के बीच में आ गया, ठीक है, वो स्क्वायर बीच में आ गया, जो वाई कट है ना वो स्क्वायर के बीच में आ गया। तो मुझे क्या है, ये लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, ये लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये एरिया ऊपर आएगा और ये एरिया मेरा नीचे आएगा, है ना। तो ये लाइन तो मुझे पता ही है ना, गिवन है ना, क्योंकि स्क्वायर की सारी लेंथ जो होती है ना वो सेम होती है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये होता है ना, स्क्वायर की प्रॉपर्टी ही है कि सारी लेंथ हमारी क्या सेम है, ठीक है। तो मुझे ये लेंथ पता है, मतलब अगर मुझे गिवन है ये लेंथ तो मुझे ये लेंथ भी पता है, ठीक है। तो क्या है ना, अब इस वाले वाई पॉइंट को कैसे निकालेंगे, ठीक है, सॉरी इस लेंथ को कैसे निकालेंगे, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है ना। अब मुझे ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट तो पता ही होगा ना, निकाल लूँगी, कैसे निकाल लूँगी, ये वाला पॉइंट को ऐड कर देंगे लेंथ में, तो ये वाला पॉइंट निकल आएगा मुझे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ गया और ये भी आ गया मेरा। तो मैं क्या करूँगी, वाई माइनस, यहाँ पे देखेंगे इस लेंथ को कैसे निकालेंगे, ये मेरा वाई है और ये मेरा टॉप है, इसको मैं टॉप टी मान लेती हूँ, ठीक है, ये टॉप है और ये मेरा वाई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, टी माइनस वाई विल बी गिवन दैट दिस, ये मेरी लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ मेरी क्या होगी, L1 इक्वल्स टू टी माइनस वाई। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी इतनी लेंथ आ गई, ठीक है। ये मेरी लेंथ कैसे आएगी ये मेरी लेंथ आएगी L2 इक्वल्स टू, ये मेरा बॉटम पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है, ये मेरा बॉटम पॉइंट होगा। तो ये कैसे आएगी, वाई माइनस वी, ये मेरा ब्लू आएगा। तो ये मेरी L2 आएगी नीचे वाले एरिया के लिए, ये मेरी L2 और ये मेरा L1 आएगा, वो मेरा ऊपर वाले एरिया के लिए आएगा, ठीक है। अब बस एरिया कैसे निकालेंगे, L1 तो मुझे पता है, L2 ब्रेथ तो मुझे, सॉरी बी तो मुझे पता ही है, ये मुझे गिवन ही है क्वेश्चन में। जैसे सपोज ये मेरा L है, ठीक है,
L1 और L2 मैंने निकाल लिया। L1 हमारा किसके लिए आएगा, एबव के लिए, L2 मेरा नीचे के लिए आएगा। L और ये मुझे L तो पता ही है, ये मेरी लेंथ आ गई, ठीक है, ये स्क्वायर की ये। तो अब ये जो कट जाएगा ना तो फिर स्क्वायर नहीं बचेगा, स्क्वायर तो बचेगा, स्क्वायर ही होगा। तो मुझे ये सब साइज़ पता ही है और ये L1 पता है, ये L2 पता है। तो इस L को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे वाला एरिया दे देगा, और ये L को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर वाला एरिया दे देगा। तो ये मेरा बिटवीन वाला भी हो गया है, ठीक है। ये समझ गए L2 और L1 कैसे निकाला है, L1 और L2। ये टी और बॉटम वाला पॉइंट को काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंस है इस क्वेश्चन में, मतलब बॉटम पॉइंट को निकालने में और टॉप वाले पॉइंट को भी निकालने में। तो टी और बॉटम को आपको पहले से ही निकाल के रख लेना है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन थे इसमें, या तो एवम में आएगा पूरा स्क्वायर, या तो फिर पूरा स्क्वायर बॉटम में आएगा, या फिर बिटवीन में जाएगा। तो ये मेरे 3 कंडीशन है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। पहली मेरी कंडीशन क्या है, पहली जो मेरी कंडीशन थी क्या थी कि जो मेरा ब्लो आए, मतलब जो मेरा क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर है, स्क्वायर नीचे आ जाए, किसके, बाई कट के नीचे आ जाए। तो बाई कट के नीचे आने के लिए मुझे कंडीशन क्या मैंने बताई थी, मतलब नीचे है पूरा स्क्वायर जो मेरा है वो बाई कट के नीचे। तो बाई कट के नीचे मतलब टॉप मोस्ट जो उसका पॉइंट है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट उसको लेस देन या फिर इक्वल टू बाई कट होगा, या फिर जो मेरा स्क्वायर है ना वो मेरा क्या है, वो मेरा एबव है, किसके, बाई के। यानी जो मेरा बॉटम है ना, बॉटम है वो मेरा बड़ा होगा किससे, बाई के, ठीक है। अब बिटवीन में मैंने बता दिया, बिटवीन में 2 कंडीशन मेरी थी। बिटवीन में मेरा जो स्क्वायर था ना वो मेरा कट गया है, ठीक है, लाइक स्क्वायर का हाफ पार्ट हो गया, मतलब हाफ या किस में डिवाइड हुआ, ठीक है। एक पार्ट बिटवीन में ये आएगा, मतलब एक पार्ट बाई कट की तरह आएगा। तो जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, जो ऊपर वाला पार्ट होगा L1 जिसकी लेंथ होगी वो T माइनस वाई होगा। ऊपर वाला पार्ट क्यों, मैंने टॉप माइनस वाई ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, क्या होगा, टॉप माइनस वाई, एक मिनट, टॉप माइनस वाई। तो टॉप माइनस वाई क्या होगा मेरा, T माइनस वाई, ये मेरी लेंथ जाएगी किसकी, L1 ऊपर वाले, एवव, ये मेरा क्या होगा, एवव हाइट होगी, इसको क्या बोल दूँ, एवव हाइट, HEIGHT, HEIGHT, ये मेरी क्या है, एवव हाइट है, एक मिनट, ओके, ये मेरी एबव हाइट है। और जो मेरी ब्लो हाइट होगी, मतलब कट के नीचे, तो कट के नीचे वाली मेरी हाइट क्या हो जाएगी, बॉटम, सॉरी, वाई माइनस बॉटम, ये मेरी कट के नीचे वाली हाइट होगी। तो बस एबव हाइट बदल गई, ब्लो हाइट भी, एक मिनट, इसको मैं ब्लो हाइट लिख दूँ, हाइट बिलो द लाइन, ओके। तो एबव बदल गई, ब्लो बदल गई, तो 3 कंडीशन होंगी हमारे एरिया निकालने के लिए। तो बस सिंपली हमें जो स्क्वायर है ना उस पर हमें आइट्रेट करते जाना है, और एरिया एक तो 2 हमें वेरिएबल ले लेने, एरिया वाला और एबव, ठीक है, 2 वेरिएबल ले लेंगे। उसमें एरिया अगर सॉरी एबव वाला होगा, जो एरिया अगर जो मेरा स्क्वायर है ना एबव वाली कंडीशन में होगा तो पूरा स्क्वायर का एरिया हम एबव में ऐड कर देंगे, आइदर ब्लो में, और अगर इन दोनों में से किसी में होगा तो बिटवीन वाले में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एरिया के फंक्शन निकालने के, एरिया फंक्शन। तो एरिया फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको, एरिया वाला फंक्शन कैसे राइट करना है, ठीक है। एरिया फंक्शन, ठीक है, एरिया फंक्शन कैसे निकालना है, जो कि मेन पार्ट है हमारा, एरिया का फंक्शन को कैसे निकालना है, ठीक है, एरिया फंक्शन, ठीक है, एक मिनट, एरिया फंक्शन जो लिखना है वो मुझे कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या, मुझे एक फंक्शन डिफाइन कर लेना है, लाइक डिफ बना लेते हैं एक फंक्शन को, डिफ, क्योंकि मुझे यहाँ पर डिफरेंस स्टोर कर रहा है ना, एरिया का डिफरेंस निकाल लिया मैंने, ठीक है। इसमें लिख देते हैं डिफ एरिया, एक मिनट, डिफ एरिया, ओके। और इसमें स्क्वायर नाम का एक हमारा 2D एरिया आएगा, प्लस जो एक मेरा बाई कट आएगा, बाई कट जो मेरा बिड होगा ना वही बाई कट होगा, तो मिड वाई, ओके, मिड वाई वाई ही लिख लेते हैं, वाई कट, ओके, ओके। इसको थोड़ा सा साइड में, ये मेरा फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल इसमें बता कर देती हूँ कैसे करना है।
ओके, अब ये फंक्शन को लिखते हैं, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बाई कट मैंने निकाल लिया और उसमें क्या करेंगे, जैसे फॉर लूप अप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो मेरा एक स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, फॉर इंट स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी मैं ऐसे ही लिख के दिखा देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक्स की तो वैल्यू, एक्स को कोई काम में नहीं आया तो मैं बाई की निकालूंगी पहले। तो बाई इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी बाई नहीं, बॉटम पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, बाई का बॉटम पॉइंट जो होगा। तो बॉटम पॉइंट मेरा क्या था, ये वाला पॉइंट। एक मिनट, जैसे कि मेरा ये स्क्वायर गिवन है ना, ये स्क्वायर गिवन है, तो इसका जो पॉइंट होगा ना, एक तो एक्स दिया है, ठीक है, और एक मेरा बाई हो जाएगा, सॉरी एक मेरा बी हो जाएगा, मैं बी मान ले रही हूँ इसको, और एल, बस इतना ही तो गिवन है ना मुझे क्वेश्चन में, एक्स बी एल। तो बस इसी के अकॉर्डिंग मैं लिखती हूँ, ठीक है। मुझे बी, तो बी मैंने निकालेंगे, बी मेरे किस पॉइंट, बी मेरा किस इंडेक्स पे है, 1 पे है, ठीक है। और जो मेरा एल है वो किस इंडेक्स पे है, 3 पे है। एल इक्वल्स टू एस क्यू ऑफ, सॉरी 2 पर है। और मेरा एक चीज़ मुझे और निकालनी, टॉप पॉइंट स्क्वायर का टॉप मोस्ट पॉइंट, एस क्यू ऑफ, सॉरी कैसे आएगा, एल प्लस बी। तो ये मेरा क्या आएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट। ये किस चीज़ का टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये बाईथ का टॉप मोस्ट पॉइंट है, बाई कोऑर्डिनेट का टॉप मोस्ट पॉइंट है इसी स्क्वायर, इस पर्टिकुलर स्क्वायर में, ठीक है। और मैं क्या करूँगी इसमें, ठीक है, हाँ, आप चेक करना है इसमें, इफ़ जो मेरा बाई कट मैंने माना है ना, बाई कट, अगर जो बाई कट है वो बाई कट के नीचे सारा स्क्वायर है, जो स्क्वायर है मेरा पर्टिकुलर स्क्वायर है ना, बाई कट के नीचे है, तो बाई कट के नीचे के लिए क्या होगा, ये इक्वल्स टू, सॉरी जो बाई कट है वो बड़ा है किसके, टॉप मोस्ट पॉइंट से, यही वो ना, टॉप मोस्ट पॉइंट से बड़ा है। तो सिंपल मैं क्या कर दूँगी, एक मिनट, सिंपल क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्या करना है, जो मेरा एरिया होगा ना, एबव वाला एरिया, एबव में ऐड कर देना एरिया, क्या होगा, एल क्रॉस एल, बस। और यही चीज़ मुझे क्या करना है, यही कंडीशन मुझे चेक करनी है, एल सिर्फ अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो दूसरी कंडीशन मेरी क्या होगी, या फिर मेरा जो बाई कट है ना, बाई कट छोटा होगा किसके, बॉटम से, यानी बाई कट नीचे और जो स्क्वायर का बॉटम एरिया है वो ऊपर है, यानी पूरा स्क्वायर मेरा ऊपर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके लिए फॉर दैट वी हैव टू, एक मिनट, हाँ, तो इसके क्या करें, एबव में, सॉरी ब्लो में मुझे ऐड कर देना है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर ब्लो होगा मेरा, यहाँ पर एबव होगा मेरा, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर ब्लो होगा, ब्लो एरिया में ऐड करना, क्योंकि ये नीचे आ रहा है ना मेरा स्क्वायर, इसीलिए, क्योंकि बाई कट मेरा जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो नीचे है, टॉप मोस्ट पॉइंट बाई कट के नीचे नहीं, पूरा एरिया मेरा नीचे नहीं, ब्लो में ऐड होगा। और यहाँ पर क्या है, बॉटम मोस्ट पॉइंट मेरा बाई कट के ऊपर है, यानी पूरा एरिया ही मेरा, सॉरी स्क्वायर जो है मेरा वो ही ऊपर है, ठीक है। तो मुझे ये मिस किस में आएगा, मेरा एबव में, एबव एरिया सेम ही होगा क्योंकि एल क्रॉस एल, बस एरिया मेरा डिफरेंट कहाँ पे होगा, बिटवीन वाले पॉइंट में। और एल्स अगर ये दोनों में किसी नहीं हुआ तो मेरा एल्स पार्ट में आएगा, ठीक है। क्या आएगा एल्स पार्ट में, मेरा एरिया जो है ना वो मेरा एल्स पार्ट में आएगा। ठीक है, तो एल्स पार्ट में क्या होगा, सबसे पहले मुझे हाइट एबव वाली निकाल लेंगे। एबव वाली हाइट मेरी क्या थी, टी माइनस बाई, ठीक है, ये मेरी एबव वाली हाइट थी, एबव। और जो मेरी नीचे वाली हाइट क्या थी, नीचे वाली मेरी हाइट थी बाई माइनस बी, ओके, ये मेरी नीचे वाली हाइट थी ब्लो। बस इसमें क्या कर देना है मुझे, इसमें मल्टीप्लाई बाई एल और इसमें मल्टीप्लाई बाई एल, तो ये मेरा एरिया निकलेगा। और इस एरिया को ऐड कर देंगे, इस एरिया को किस में ऐड कर देंगे, ये एबव वाले में ऐड कर देंगे, और इसको ब्लू वाले में ऐड कर देंगे। ये मैंने सूडो कोड लिख के दिखाया है सिंपल, तो बस इतना ही करना है। तो ये मेरा एरिया फंक्शन हो गया लिखने का, जो मैंने एरिया फंक्शन लिखा है। और ये मेरा कंडीशन जो मैंने बताई है तीनों कैसे कंडीशन थी, ठीक है। और ये मेरा प्रिसीजन क्यों डबल को जो सॉरी बाइनरी सर्च है वो डबल में कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया प्रिसीजन के साथ में, ठीक है। और बस इसमें क्या कितने स्टेप थे, और ये बाइनरी सर्च क्यों बाइनरी सर्च अप्लाई किया कैसे, तो 3 स्टेप मुझे इसमें करने। पहले मुझे लो और हाई निकाल लेने हैं, जो कि सिंपल बाइनरी सर्च के लिए मुझे निकालने हैं, ठीक है, मैक्स बाई और मीन बाई निकाल लेंगे। तीसरा स्टेप क्या होगा, मुझे इस बाइनरी फंक्शन को लिखना है, ठीक है, बाइनरी सर्च के फंक्शन को। और सॉरी फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा रेंज निकालना, सेकंड स्टेप हो गया बाइनरी सर्च लिखना, एंड थर्ड स्टेप हो गया मुझे इस एरिया के फंक्शन को लिखना। बस 3 स्टेप मुझे करने हैं, तो मैंने बता दिया आपको। फंक्शन ही मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, सूडो कोड मैंने लिख के दिखा दिया। अब मैं आपको
कोड लिख के दिखाती हूँ, ठीक है, लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे जाकर, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर सिंपल मुझे कोड लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले मुझे फर्स्टली वी हैव टू डिफाइंड डबल, सब कुछ डबल में ही लेना है, ठीक है। सबसे पहले मुझे मिन वाई लेना है, ठीक है। तो मिन वाई के लिए मैं डबल डॉट मैक्स ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे मिन वाई निकालनी है, मैक्स वैल्यू, सेम फॉर मैक्स, ठीक है। और ये मेरी रेंज है, ठीक है, जिस पे मुझे बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है, मिन वैल्यू, ओके। आप मुझे क्या करना है, बाइनरी सर्च लगा, सॉरी, इससे पहले मुझे मिन वाई और मैक्स वाई निकाल लेना है, ठीक है। इंट एसक्यू फ्रॉम स्क्वायर्स, ओके। देन मुझे क्या करना है, पहले मुझे डबल बाय निकालने, सॉरी बी निकाल लेते हैं। मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, जो स्क्वायर में गिवन है, क्या गिवन होगा मुझे, एक्स, ठीक है, एंड वी एंड एल, ये मुझे 3 चीज़ें गिवन है, ठीक है, एक स्क्वायर में, ठीक है। तो बी मेरा किस पे, एस क्यू ऑफ 1 पे है, और एल जो मेरा किस पे है, एस क्यू ऑफ 2 पर है, ठीक है। और मुझे मिन वाई जो मेरी आएगी वो तो मेरे बॉटम से जाएगी, तो मैथ डॉट मिन ऑफ मिन वाई कॉमा वी, ओके, बॉटम वाला पॉइंट, ठीक है। एंड जो मेरा मैक्स आएगा, मैक्स वाई आएगी मेरी, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ मैक्स वाई कॉमा बी प्लस एल, ओके। तो ये मेरा क्या होगा, मैक्स आ गया, बी प्लस एल क्यों गया, मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट, उस स्क्वायर का मुझे टॉप मोस्ट पॉइंट चाहिए, और मुझे ये सारे स्क्वायर्स के साथ कंपेयर करना है, तो इसीलिए तो मुझे रेंज आएगी। तो रेंज भी मेरी निकाल ली, ठीक है। ये मेरा क्या था, फर्स्ट स्टेप फाइंड रेंजेस, ओके, फाइंड रेंज। एंड सेकेंड स्टेप था मेरा, सेकेंड स्टेप था राइट बाइनरी सर्च, एक मिनट, राइट बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा वाई, जो मेरा मैक्स वाई है, अगर मैक्स वाई माइनस मिन वाई जो है वो अगर मेरा ग्रेटर तक, मतलब ग्रेटर देन तक, किस तक की रहा, 1e6 तक की रहा, तब तक मतलब चलता रहेगा। मतलब अगर 1e6 तक की इक्वल भी रहा ना, अगर 1e6 से बड़ा है तो चलता रहेगा, ठीक है। अब 1e6 के इक्वल हो गया तो बस वहीं पे हम ब्रेक कर देंगे। क्यों 1e6 के इक्वल हो गया, क्योंकि 1e6 के इक्वल मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे 1e5 तक की चाहिए ना, जो प्रेसिडेंट चाहिए ना 1e5 तक की चाहिए मुझे, ये गिवन है क्वेश्चन में। इसीलिए अगर मैक्स माइनस मिन वाई अगर ग्रेट इक्वल है 1e5 तक की, तब तक चलता रहे। लेकिन 1e6 पे आ गया तो मतलब वो छोटा हो गया, 1e6 के इक्वल हो गया, तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इतने छोटा तक की नहीं चाहिए मुझे, 1e5 तक की प्रेसिजन रिक्वायर्ड है। कब तक की, 1e5 तक का प्रेसिजन रिक्वायर्ड, ओके। अब मुझे क्या करना है, सिंपल मिड निकाल लेना है, डबल मिड बोलो या फिर कट वाई बोलो, जो वाई कट में निकालना है ना, वाई कट इक्वल्स टू मिन वाई प्लस मैक्स वाई डिवाइड बाई 2.0। क्यों, डबल के साथ कर रहे हैं इसलिए। इफ़ जो मेरा डिफ एरिया होगा ना, डिफरेंस ऑफ एरिया, तो डिफरेंस एरिया मैं निकाल रही हूँ अबव माइनस बिलो का। तो अगर जो मेरा डिफरेंस ऑफ एरिया जो मेरा आएगा ना, मैं इसमें स्क्वायर्स भेज रही हूँ, ठीक है, स्क्वायर्स कॉमा कट वाई कट, अगर वो मेरा ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी अबव माइनस बिलो है। ये क्या है, ये मेरा कौन सा केस है, अबव माइनस बिलो, यानी अबव वाला एरिया मेरा क्या है, बड़ा है, अबव वाला एरिया बड़ा है, तो मतलब अबव पार्ट में ज़्यादा एरिया है, बिलो में कम है, तो मुझे जो वाई कट है ना, तो ऊपर बढ़ाना है, यानी जो मेरी लो वैल्यू है ना, यानी मिन वाई, तो उसको मुझे वाई कट पे पहुँचा देना है। ये क्या है मेरा, लो मेरा इक्वल्स टू मिड, ये मैं कंपेयर कर दे रही हूँ उसके साथ, ठीक है। एल्स मेरा पार्ट क्या है, जो मेरा अबव माइनस बिलो है ना, वो मेरा लेस देन 0 हो गया, ठीक है। अभी मेरा ये ग्रेटर देन 0 था, क्योंकि मेरा अबव वाला पार्ट ज़्यादा था, लेकिन अभी मेरा बिलो में ज़्यादा है, तो बिलो में जाना के लिए मुझे बिलो वाला पार्ट ज़्यादा, मतलब बिलो एरिया जो है वो मेरा ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना है, मैक्स वाई को मुझे वाई कट पे ला ले देना है, मैक्स वाई को नीचे ले आओ, मैक्स वाई कट है ना, जो मैक्स वाई पॉइंट है उसको नीचे ले आओ, वाई कट पे ले आओ। तो ये मेरा क्या होगा, सिंपल हाई को मैंने क्या कहाँ कर दिया, मिड पे कर दिया, बस ये हो गया। और रिटर्न कर देंगे लास्ट में लो कह रही हूँ, मिन वाई, ओके, मिन वाई को रिटर्न कर देंगे। मिनी वाई तो है यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा ना जहाँ पर मेरे इक्वल रहेंगे,
ये ग्रेटर देन और इक्वल, ये इक्वल हो जाएंगे तो मिन वाई को मुझे क्या कर देना है, इसमें कर देना है, मिन वाई को रिटर्न कर देना है। तो अब मुझे डिफ एरिया वाला फंक्शन लिखना है बस। तो डिफ एरिया फंक्शन लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मिनट सॉरी, प्राइवेट डबल क्या लिखना है, डिफ एरिया, और यहाँ पर इंट स्क्वायर मेरे आ रहे हैं, स्क्वायर्स, एक मिनट, स्क्वायर्स कॉमा डबल वाई कट। ओके, अब सिंपल मुझे यहाँ पर क्या करना है, दो वेरिएबल लेने हैं, एबव का और एबव का और बिलो का एरिया के लिए। डबल एबव एरिया इक्वल्स टू 0.0 ले लेते हैं, ठीक है। डबल बिलो एरिया इक्वल्स टू 0.0। ओके, अब सिंपल मुझे फॉर लूप चलाना है। इंट स्क्वायर पे मैं एस क्यू ले लेती हूँ, फॉर लिखने के लिए जल्दी लिख जाएगा, ठीक है, एस क्यू। फिर मैं ले लेती हूँ डबल क्या लेते हैं सबसे पहले, बी क्या होगा, एस क्यू ऑफ किस पे होगा, एस क्यू ऑफ 1 पे जो बॉटम पॉइंट होगा, एंड डबल जो मेरा एल होगा वो किस पे होगा, एस क्यू ऑफ 2 पर होगा। और डबल मुझे टॉप पॉइंट भी निकालना है, टॉप पॉइंट कैसे आएगा, बी प्लस एल से, बी प्लस एल से। एंड जो मेरा एरिया होगा, स्क्वायर का एरिया होगा क्या होगा, एल क्रॉस एल। अब मैं चेक करूँगी, जो मेरी 3 कंडीशन बताई थी ना, 3 कंडीशन। सबसे पहले क्या, अगर मेरा जो एरिया है वो ऊपर लाई कर रहा है, एरिया सॉरी जो स्क्वायर है ना ऊपर लाई कर रहा है, ऊपर लाई करने के लिए क्या होगा, बाई कट, जो बाई कट है ना, जो बाई कट है वो नीचे है और बॉटम पॉइंट मेरा ऊपर है, स्क्वायर का बॉटम पॉइंट ऊपर है। ये मेरा क्या हो गया, जो पूरा स्क्वायर है वो मेरा बाई कट के ऊपर है। तो मुझे क्या करना है, यानी बी अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया, बाई कट हो गया, बाई कट हो गया। अगर ये है तो यानी एबव है, स्क्वायर लाइज एबव वाई कट, ठीक है। तो बस सिंपल मुझे क्या करना है, एबव वाले में एरिया में, एबव एरिया में प्लस इक्वल्स टू क्या कर देना, एरिया, एल्स इफ जो मेरा बाई कट है वो नीचे है, ठीक है, बाई कट मेरा ऊपर है किसके, टॉप मोस्ट पॉइंट के। तो ये क्या है, स्क्वायर लाइज ब्लो बाई कट। सिंपल मुझे क्या करना है, ब्लो में ब्लो एरिया प्लस इक्वल्स टू एरिया। अब जो मेरा एस पार्ट आएगा जिसमें इन दोनों से कोई नहीं आया, बिटवीन, स्क्वायर लाइज बिटवीन बाई कट। ओके, तो बस मुझे क्या करना है, पहले मुझे हाइट निकालनी है, एबव वाली हाइट एबव, जो बाई कट के ऊपर है, बाई कट के ऊपर के लिए मुझे क्या करना है, टी माइनस वाई, ठीक है। लेकिन हाइट ब्लो के लिए मुझे क्या करना है, बॉटम, हाइट ब्लो के लिए मुझे क्या करना है, वाई माइनस बॉटम। और यही मैं एरिया निकाल लेती हूँ, एल इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों में। तो ये मेरा क्या होगा, एरिया डबल हाइट एबव, डबल हाइट एबव एरिया, ठीक। हाइट भी निकाल लिया मैंने, एरिया भी निकाल लिया, इसमें भी एरिया, ठीक है, डबल। अब इन्हीं दोनों को मुझे क्या करना है, एबव वाले एरिया में ऐड कर देना, एबव एरिया प्लस इक्वल्स टू ये जो मेरा हाइट एबव एरिया था इसमें, और जो मेरा ब्लो वाला एरिया था, ब्लो एरिया प्लस इक्वल्स टू हाइट ब्लो, और रिटर्न कर देना है लास्ट में एरिया, सॉरी डिफरेंस है रिटर्न करना किसका, एबव एरिया का, एबव एरिया माइनस ब्लो एरिया, बस लिख गया पूरा फंक्शन, डिफ एरिया का भी हो गया और सेपरेट स्क्वायर का भी हो गया। अब मैं रन करती हूँ उस कोड को, देखते हैं कहीं एरर तो नहीं है। ओके, मैक्स वैल्यू डबल डॉट मैक्स वैल्यू, एक मिनट कहाँ पर, डबल डॉट मैक्स वैल्यू सही तो क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड डबल डॉट मिन वैल्यू। ओके, ये डी डबल होगा, डी डबल, ओके।
एरिया L क्रॉस L, इसमें भी मैंने डबल नहीं लिखा है, और कहीं है देखें 14, लाइन नंबर 14 एबव एरिया, ठीक है वो इसी सेम ही है, और कहीं पर 17 एंड 20 डबल हाइट एरिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा बाई कट है, बाई नहीं है, बाई कट एंड 21 37 मैंने क्या है एस क्यू, यहाँ पर एस क्यू मुझे लिखना है, ठीक है एकदम करता है। रन हो गया, अब सबमिट करके देखते हैं, नॉट सबमिटेड। सबमिट हो गया, 90% वेट्स, 94 मिली सेकेंड टाइम लिया इसने, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बस 3 स्टेप करने थे, पहले रेंज फाइंड करना था, फिर राइट करना था बाइनरी सर्च का, और फिर मुझे डिफरेंस एरिया को लिखना था, ठीक है, डिफरेंस एरिया फंक्शन को लिखना था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझ में तो एक बार और वीडियो देखिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छे समझाने की कोशिश की है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।